Welcome, children. We are discussing the chapter Biotechnology Principles and Processes. This is chapter 11 of class 12th biology. So, in this chapter, in our first session, we have already discussed about the history and the basic principles of biotechnology. Now, today we'll be discussing the tools of biotechnology and under which we'll be discussing restriction enzymes and gel electrophoresis. So, let us see what are the learning units in this chapter: biotechnology, basic principles and history, and chapter overview that we have already finished in our first session. So, today we'll be discussing these two topics, that is restriction enzyme and gel electrophoresis, and then we'll discuss in our next session we'll be discussing the cloning vectors making host competent, then process of rDNA technology, isolation of DNA, cutting of DNA and gene amplification using PCR, then processes of rDNA technology, insertion of rDNA in host and obtaining foreign gene product. So far what knowledge you have gained, children? You know the basic structure of DNA, that is the double helical structure, and you know how the replication of DNA takes place. You also know the chemical nature of bonding in DNA, that is hydrogen bond is present between the two strands, and what is phosphodiester bond. So all these bonds you know. Then nature of charge on DNA. So DNA is negatively charged, that is known to you, and why it is negatively charged, that is also known to you. Then concept of potential difference is also known to you. So today after discussing this topic, that is the tools of biotechnology, restriction enzymes and gel electrophoresis, what knowledge you will gain? You will be able to explain the role of endonuclease and exonuclease enzyme. You will be able to describe the nomenclature of restriction endonuclease enzyme, and you can explain working of restriction enzyme in biotechnology. You can enumerate steps in creating recombinant DNA molecules. You can explain the construction and working of gel electrophoresis. So बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, यानी जो बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमारे टूल्स क्या क्या होंगे, सो दैट विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट, then we will be discussing the whole process of recombinant DNA technology. So let us see, let us have a overview of the tools of biotechnology. तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट दे रखी है. तो इसमें हमारा जो टूल है, द मेजर टूल्स आर द एंजाइम्स, और इस एंजाइम में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ठीक है. देन नेक्स्ट टूल इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आज हम इस सेशन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे. देन इन द नेक्स्ट सेशन हम और दो टूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट. ठीक है. तो ये चार टूल जो है दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर, और यू कैन से दीज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी. So these enzymes, here I have given the classification of the enzymes which are involved in the process of biotechnology. So it includes the cleaving enzyme that breaks or removes the nucleotide, are exonuclease and endonuclease and restriction endonuclease. So we'll be discussing these three in details. Okay. Then other enzymes that you all know about this, that is lysing enzymes, which breaks down or which lyses the membrane, that is lysozyme, cellulase and chitinase. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन एंजाइम के बारे में भी हम पढ़ेंगे. देन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, उसमें हम पढ़ेंगे रिवर्स एंजाइम एंड डीएनए पॉलीमरेज. सो ये सारे एंजाइम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से सबसे जो न्यू एंजाइम है हमारे लिए, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और जिसके बारे में हमको पढ़ना है डिटेल्स में.
ठीक है। इसके अलावा हमारा जॉइनिंग एंजाइम में है डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो एंजाइम में हम 4 तरह के एंजाइम पढ़ेंगे बच्चों। दैट इज क्लीविंग एंजाइम, एज यू कैन से हियर, क्लीविंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम, देन सिंथेसाइजिंग एंजाइम एंड जॉइनिंग एंजाइम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लीविंग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। एंजाइम्स, as I have said you, there are 4 groups of enzymes in biotechnology, that is cleaving enzyme, lysing enzyme, synthesizing enzyme and joining enzyme. So here the cleaving enzymes which cleaves the DNA, suppose say this is the DNA strand or RNA strand, it cleaves or divides the DNA at different positions. So depending upon the location where it cleaves the DNA, they may be exonuclease or endonuclease or restriction endonuclease. Okay. Then lysing enzymes, they are responsible for digesting the membranes or digesting the membrane made up of a particular material. Then synthesizing enzyme, they are your reverse transcriptase and DNA polymerase that you all know. Then DNA ligase is another most important enzyme which is indispensable for biotechnology. Okay, so here you can see children that the first group of enzyme we have seen is the cleaving enzyme. So the cleaving enzyme are known as nucleases that cleaves the DNA from terminal ends. So this is your exonuclease. So this is exonuclease. The exonucleases are those enzymes, those nuclease enzymes which cleaves the DNA from the terminal end. Suppose say this is DNA. So if it will cut this portion of DNA, then that enzyme, that group of enzyme is known as exonuclease enzyme. So why they are known as nuclease enzyme? Because they are found in the nucleus. I think it is clear to you what is exonuclease enzyme. Okay, now come to endonuclease enzyme. The nuclease that cleaves the DNA from within by cutting the phosphodiester bond, that is called endonuclease. Okay, so suppose a DNA and the nuclease enzyme will cut a portion within. So this is the intermediate part of the DNA. यहाँ से अगर इसको कट करता है तो हम उसको बोलेंगे endonuclease enzyme. Okay, so now let us see what is restriction endonuclease enzyme. So restriction enzymes are endonucleases. They are isolated from the archaebacteria and eubacteria that recognizes specific DNA sequence. ये जो आपका एंजाइम है बच्चों, ये एंजाइम क्या करेगा, डीएनए का एक स्पेसिफिक साइट में, एंडोजिनस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहीं से भी कट कर सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए का कहीं पर भी मतलब एंडोजिनस पार्ट यानी विद इन द डीएनए कट करेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक साइट में कट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. सो द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम व्हिच एक्ट्स एट ए रेस्ट्रिक्टेड साइट ओनली, देन दैट इज नोन एज restriction endonuclease enzyme. So this is very important children. This definition is very important from examination point of view. Restriction enzymes are endonucleases from eubacteria and archaebacteria that recognizes a specific sequence of DNA, the nucleotide sequence recognized for cleavage by restriction enzyme is called restriction site. जो साइट को वो सिलेक्ट करता है और क्लीव करता है उसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट. ओके, नाउ लेट अस सी द पिक्चर्स हियर. यहाँ देखो बच्चों, ये एक्सोन्यूक्लियस का किस तरह काम कर रहा है आप देख सकते हो. दिस इज डीएनए,
ये डीएनए है, डीएनए को वो एंड से, यहाँ एंड से उसको कट किया है, सो यहाँ टर्मिनल पार्ट से कट किया, सो दिस इज एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरमीडिएट पार्ट से डीएनए को कट कर रहा है, सो इट इज एंडोन्यूक्लियस। अभी हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखो बच्चों, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सी दिस इज द डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करता है? टर्मिनल पार्ट से कट करता है। एंडोन्यूक्लियस जो है इंटरमीडिएट पार्ट से कट करता है। अभी हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इट वाज फर्स्ट postulated by W. Arbor in 1960. The first true restriction endonuclease was isolated in 1970 by Nathans and Smith, and all the 3 scientists were awarded the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1978 for the discovery of endonucleases. Now, why this restriction enzyme is an indispensable tool of recombinant DNA technology? See children, restriction enzyme which is also called restriction endonuclease, इसको restriction endonuclease भी कहा जाता है. It is nothing but a protein produced by bacteria that cleaves the DNA at a specific site along the molecule. ठीक है, which I have already told you. In the bacterial cell, restriction enzymes cleave foreign DNA. ओके, हम यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ये क्या करता है, हम किसी डीएनए को होस्ट में डालना चाहते हैं, तो उस डीएनए को पूरा मतलब पूरा डीएनए तो हम नहीं लेंगे, पूरा डीएनए से हमको मान लो एक जीन चाहिए, तो उसी जीन को ही हम कट करके लेंगे. सो ये जो स्पेसिफिक जीन को कट कर रहा है, सो दैट स्पेसिफिक क्लीविंग प्रॉपर्टी किसका है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का है. ठीक है, सो जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसी को ही हम ले सकते हैं. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स and used in the laboratory to manipulate fragments of DNA such as those that contains gene. For this reason, they are indispensable tool of recombinant DNA technology. DNA technology is recombinant DNA technology is impossible without the रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि हमको वेरी वेरी स्पेसिफिक जीन की ज़रूरत है. चाहे हम जीन को मैनिपुलेट करें या फिर वैसे ही जीन को किसी में डालेंगे, तो हमको स्पेसिफिक जीन चाहिए. तो स्पेसिफिक जीन पाने के लिए हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत है. तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी कैसे हुआ. देखो, ये पिक्चर को आप ध्यान से देखो बच्चों. ये एक बैक्टीरियल सेल है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है. ठीक है, लाइट ग्रीन. सो इट इज़ ए बैक्टीरियल सेल. तो ये जब बैक्टीरियल सेल को जब वायरस से इन्फेक्ट किया गया, तो यू कैन सी दैट दिस इज़ द वायरस. तो वायरस से जब इन्फेक्ट किया गया, एज यू नो दैट जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वायरस का क्या आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर? जेनेटिक मटेरियल. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वायरस का क्या आ चुका है, द वायरस का जो डीएनए यहाँ पर अंदर आ गया. ठीक है, अभी अंदर आने के बाद देखा गया कि जैसे हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, वैसे बैक्टीरिया में भी एक इम्यून सिस्टम होता है. वो कभी वायरल डीएनए को नहीं चाहेगा कि वो बैक्टीरियल डीएनए को ख़त्म कर दे, नष्ट कर दे. तो इसीलिए वो अपना एक इम्यून सिस्टम, उसका डेवलप, सिस्टम तो हम नहीं बोलेंगे, सो इम्यूनिटी, उसका एक इम्यूनिटी कैपेसिटी है, जिसके वजह से वो क्या करता है, ये वायरल डीएनए को मल्टीप्लिकेशन करने से रोकता है. वो कैसे रोकता है, चलिए बच्चों देखते हैं. आप यहाँ देखो, मैं यहाँ येलो कलर लेती हूँ. ठीक है, सही रहेगा. तो ये देखो बच्चों, ये बैक्टीरिया वायरस का डीएनए यहाँ आया. तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर 2 एंजाइम काम कर रहे हैं.
ठीक है, ये है बैक्टीरिया का क्रोमोजोम, ये है बैक्टीरिया का क्रोमोजोम। जो दो एंजाइम काम करते हुए पाया गया, क्या हो रहा है, एक एंजाइम, इसमें आप देख सकते हो ये जो डार्क ग्रीन कलर का टुकड़ा टुकड़ा है, सो ये डार्क ग्रीन कलर जो दिख रहा है, दैट इज द एंजाइम जो कि वायरल डीएनए को पहचान रहा है। मतलब वायरल डीएनए कौन सा और बैक्टीरियल डीएनए कौन सा, वो आइडेंटिफाई कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, वायरल डीएनए को वो काट दे रहा है, वायरल डीएनए को एंडोजिनसली बीच में से उसको काट रहा है, क्लीव कर रहा है। ठीक है, और दूसरा एंजाइम क्या कर रहा है बच्चों, दूसरा एंजाइम आप यहाँ देख सकते हो। तो ये दूसरा जो एंजाइम है वो बैक्टीरियल डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दो तरह के एंजाइम पाए गए जब बैक्टीरिया को वायरस से इन्फेक्ट किया गया, तब ये जो दो एंजाइम को नाम दिया गया। एक एंजाइम जो कि वायरस डीएनए को रिकॉग्नाइज कर रहा था और ओनली वायरल डीएनए को ही काट रहा था, उसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम दिया गया क्योंकि वो बैक्टीरियल डीएनए को कुछ नहीं कर रहा था, वो केवल आपका जो वायरल डीएनए है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको स्पेसिफिक साइट में काट रहा था, ताकि ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को कोई हार्म ना कर सके। दूसरा एंजाइम क्या था, दूसरा एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप, बैक्टीरियल डीएनए में मिथाइल ग्रुप जगह जगह पर ऐड कर दे रहा था। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप क्यों ऐड कर रहा था कि बाय चांस ये डीएनए आ गया तो बैक्टीरियल डीएनए को अटैक करने लगेगा, तो उस अटैक को रोकने के लिए क्या कर रहा था, इसको मिथाइलेशन कर रहा था डीएनए को। ठीक है, तो इसको क्या क्या आगे नाम दिया गया, मॉडिफिकेशन एंजाइम, क्योंकि वो बैक्टीरियल डीएनए को मॉडिफाई कर रहा था। सो इन दिस वे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज identified, and then it was confirmed that the bacteria has the capacity to produce the restriction enzyme to protect its own DNA, खुद का डीएनए को बचाने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंड सिंस देन मोर देन 3000, आपके बुक में मोर देन 200 दिया है, तो यू विल फॉलो योर टेक्स्ट बुक ओनली। सो मोर देन 200 restriction enzymes are so far discovered and isolated. So I think it is clear to you how this restriction enzyme was discovered. So here one more picture I have given you. So restriction enzymes are the endonucleases from eubacteria and archaebacteria that recognize a specific DNA sequence and cleaves the DNA at a particular site called restriction enzyme. And the discovery of first restriction enzyme was HIND2. पहला एंजाइम कौन सा था, HIND2, इन द बैक्टीरियम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सो द बैक्टीरिया जिसका आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था, जिसमें पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और कौन डिस्कवर किए थे, नाथन्स, आर्बर एंड स्मिथ, एंड दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी। तो कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड, उसका ही छोटा सा डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पर दे दिया। सो यू कैन सी हियर कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक बैक्टीरियोफेज लिया था और बैक्टीरिया लिया था उन्होंने, और बैक्टीरिया जीनोम को देखा उन्होंने कि बैक्टीरिया जीनोम में मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरल डीएनए को काट रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे हमने आपको बताया, HIND2 was the first restriction enzyme to be isolated, and this enzyme was first isolated from Haemophilus influenza RD strain। RD strain जैसे बैक्टीरिया में आप पढ़े थे ना बच्चों, S स्ट्रेन, R स्ट्रेन, तो उसके कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके उनको नाम दिया जाता है। तो उसी तरह ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD स्ट्रेन 2। ओके, तो इस स्ट्रेन से पहला जो
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंड टू आइसोलेट किया गया था, उसको डिस्कवर किया गया था. सो द एंजाइम वाज शॉर्ट लेबल्ड एज हिंड टू. सो इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, हमने हिंड टू नाम कैसे दिया? देखो बच्चों, जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर होता है उसको नाम देने का एक तरीका होता है. सो व्हाट इज दैट सिस्टम, व्हाट इज द रूल? ईच एंजाइम इज नेम्ड बाय 3 लेटर कोड इन इटैलिक्स. अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इटैलिक्स से लिखा और इसमें 3 लेटर है. ठीक है, 3 लेटर क्या क्या है बच्चों? HIN, HIN. मैं दूसरा कलर ले रही हूँ. सो यहाँ HIN, ये जो 3 लेटर है. और उसके बाद क्या है मैं बताती हूँ. द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज द नेम ऑफ द जीनस इन विच गिवन एंजाइम इज डिस्कवर्ड एंड इज रिटन इन कैपिटल लेटर. जैसे ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से डिस्कवर हुआ तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? H, हेमोफिलस. जीनस इज द हेमोफिलस. जीनस का फर्स्ट लेटर एंड दैट शुड बी कैपिटल लेटर इन द एंजाइम. ठीक है. द सेकेंड एंड थर्ड लेटर्स आर फ्रॉम द स्पीसीज नेम. स्पीसीज क्या है बच्चों? इन्फ्लुएंजा. सो इन्फ्लुएंजा का फर्स्ट 2 लेटर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो उसी तरह स्मॉल लेटर में 2 लेटर आएगा यहाँ पर. कहाँ से? स्पीसीज से, स्पीसीज नेम से. सो HIN, H is from the first letter of the genus and IN are the first 2 letter of the species. Okay. And if a particular strain has more than one restriction enzyme, these will be identified by Roman numeral as 1, 2, 3. जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, हिंड 2, रोमन 2 दिया गया है, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन 2. सो 2 इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया है. ठीक है. और इसका स्ट्रेन क्या था? जैसे हमने आपको बताया RD स्ट्रेन से आया, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया D. ठीक है. HIN इज फ्रॉम द नेम एंड D इज द स्ट्रेन एंड 2, दैट इज रोमन न्यूमरल 2 इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो द नोमेनक्लेचर इज डन आफ्टर द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस देम. जैसे देखो बच्चों, E-core1. E-core1 इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. वो कहाँ से आया, कैसे नोमेनक्लेचर हुआ? देखो, उसका जेनेरिक नेम है एस्चेरिचिया. सो E has come. Then coli is the species name. So CO came from species. ठीक है. Then strain क्या है? R. Order of isolation Roman numeral 1. So the name is E-core1. Okay. Similarly, hind 3. कैसे इसको किया गया नोमेनक्लेचर? ये आया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से. So H from the genus, IN from the species, then D is the strain and 3, Roman 3 is order of isolation. Similarly, BAM H1, it is isolated from Bacillus amylo. So Bacillus से B आया, amylo से AM आया, so it is BAM. Then strain is H and रोमन न्यूमरल I इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. और इसका नीचे बच्चों रिकॉग्निशन साइट भी दिया गया है. तो ये कौन सा साइट में एक्ट करेगा? जैसे E-core1 कहाँ एक्ट करेगा? GAATTC में, G के पास, राइट टू G में एक्ट करेगा. ठीक है. हिंड 3 कहाँ एक्ट करेगा? AAGCTT का A का फर्स्ट A का राइट में एक्ट करेगा. सो इसी तरह इनका पूरा रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, रेस्ट्रिक्टेड साइट होता है. दैट्स वाई दे आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो अभी थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं बच्चों, किस तरह आपका नोमेनक्लेचर किया जाता है. देखो, ये आया आपका, यहाँ आपको लिखना है नेम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है. तो ये आप पहले ट्राई करोगे बच्चों.
ये स्लाइड को आप थोड़ा पॉज करोगे, पॉज करके आप ट्राई करोगे। ये जो है हमने दिया, बैक्टीरिया का नाम दे दिया, ठीक है, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, उसका स्ट्रेन का नाम दे दिया और फास्ट एंजाइम दे दिया, ठीक है। तो अभी इसका नाम क्या होगा आपको लिखना है। क्या होगा बच्चों, आप पहले अपना आंसर तैयार करो, उसके बाद मेरा आंसर देख लेना। सिमिलरली दूसरा बैक्टीरिया दिया, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन, और उसका स्ट्रेन है एच, इट इज़ ऑल्सो फास्ट एंजाइम। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेन इज डी, इट इज़ थर्ड एंजाइम। स्टाफाइलोकोकस aureus, it is strain is 3A and it is the first enzyme. So now you try at your own level to give name to these enzymes, then see what is my answer, ठीक है। सो ये देखो, दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी आप मैच करके देखो ये करेक्ट आंसर आपका है कि नहीं, ठीक है। ओके, लेट अस प्रोसीड। अभी हम देखेंगे बच्चों रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट द रेस्ट्रिक्शन साइट इज द साइट वेयर ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट्स, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर रेड से हमने हाईलाइट किया है, तो इस पोर्शन को ये रिकॉग्नाइज करता है। तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर दैट पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। और इस साइट को पैलिंड्रोमिक साइट कहा जाता है। सो पैलिंड्रोमिक साइट क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। सो द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज क्लीव्ड बिटवीन द स्पेसिफिक बेसेस, वन ऑन ईच डीएनए स्ट्रैंड, ओके। सो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह आपका डीएनए कट करेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या, E-COR1। सो E-COR1 का साइट क्या है, ये है रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। और वो कट कहाँ करेगा, क्लीव कहाँ करेगा, कहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, G एंड A के बीच जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ भी G एंड A के बीच जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। एंड ऑलवेज दिस रेस्ट्रिक्शन साइट इज ए पैलिंड्रोमिक साइट। तो देखो बच्चों, पैलिंड्रोमिक साइट क्या है मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले आप देख लो इसने क्या किया, जी का यहाँ से कट कर दिया और इसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद क्या फ्रैगमेंट मिला आपको, देखो यहाँ से इतना और इतना, ठीक है। सो यू गॉट दिस फ्रैगमेंट, एम आई क्लियर, ठीक है। और ये हमको क्या मिल गया, ये फ्रैगमेंट ऐसे मिल गया। सो दिस इज हाउ ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो ये E-COR का एग्जाम्पल हमने दिया। E-COR के लिए क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट, GAATTC, जो कि G एंड A के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, इन व्हिच डायरेक्शन, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो इधर से ये यहाँ कट किया, और ये क्या है आपका, इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये इधर से यहाँ पर कट किया। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अभी हम देखेंगे पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। देखो बच्चों, हम लिखेंगे मलयालम, ओके। मैं लिख रही हूँ मलयालम, ये कैसे पढ़ोगे बच्चों, देखो MALAYALAM। अगर हम इधर से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, तो भी इसका स्पेलिंग क्या रहेगा, MALAYALAM, मलयालम। सो इट कैन बी रेड सेम फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से ये सेम मीनिंग दे रहा है और सेम रीड कर रहा है। सो सिमिलरली इन डीएनए ऑल्सो, डीएनए में क्या होता है, ऐसे कुछ सीक्वेंस होता है जो कि हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो हमेशा वो क्या देगा, सेम रीडिंग सीक्वेंस देगा।
तो देखो ये 2 स्ट्रैंड है, ये 5 to 3 क्या है, GAATTC, हमें क्लियर। और इधर हम दूसरे स्ट्रैंड को 5 to 3 में पढ़ेंगे तो क्या होगा, GAATTC। ठीक है। सो द जेनेटिक पैलिंड्रोम्स आर सिमिलर टू वर्बल पैलिंड्रोम, जो मलयालम हमने बताया दैट इज वर्बल पैलिंड्रोम। A palindromic sequence in DNA is one in which the 5' to 3' base pair sequence is identical on both strand। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको दिया है एक एग्जाम्पल और यहाँ समझाया है 5' to 3' डायरेक्शन में हम सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस है डीएनए का वो सेम रहेगा। देखो यहाँ से हम देखेंगे तो इस स्ट्रैंड में GAATTC है, इस स्ट्रैंड में हम इधर से देखेंगे तो GAATTC। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नाउ विल सी what is the role of restriction enzyme in recombinant DNA technology, what is its action। देखो बच्चों ये डायग्राम के साथ इसका सारा लेबलिंग आपको याद रखना है। इट कम्स एज योर 3 marks क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन में ये आता है एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑल्सो। तो बच्चों जब हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज से दिस इज़ द डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस डीएनए से हमको ये पोर्शन, दैट मीन्स वी नीड दिस जीन, ये जीन हमको चाहिए। एंड दूसरा क्या है, दूसरा हमने क्या लिया है, सपोज से हमने वेक्टर डीएनए, मतलब जो कि इस डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा किस में, कोई होस्ट में ट्रांसफ़र करेगा। जैसे मस्क्यूटो कैरीज द प्लाज्मोडियम, ठीक उसी तरह ऐसे कुछ वेक्टर डीएनए होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो ये वेक्टर डीएनए क्या करते हैं, इस जीन को कैरी करेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये स्पेसिफिक जीन को हमको निकालना पड़ेगा इस डीएनए से, और इसमें एक स्पेसिफिक साइट में हमको इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा और इसको भी काटना पड़ेगा एक स्पेसिफिक साइट में। ठीक है, एंड दैट विल बी डन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद जब कट हो जाएगा उसके बाद हम ये दोनों को जोड़ देंगे बाय लाइगेज एंजाइम। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको कट करते हैं। सो आई एम अगेन टेकिंग ब्लू कलर लेती हूँ मैं। अच्छा बच्चों देखो, ये है आपका वेक्टर डीएनए। ठीक है, ये है वेक्टर डीएनए। ये वेक्टर डीएनए का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, और ये है फॉरेन डीएनए जिसका सीक्वेंस भी है GAATTC। क्योंकि बच्चे हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एंड बैक्टीरियल डीएनए में डिफरेंस कितना है, 0.1% ओनली। सो इसीलिए ऑलमोस्ट सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर देयर in almost all the organisms। so यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट मीन्स ECOR1, क्योंकि ये ECOR1 का रिकॉग्निशन साइट है। ECOR1 से हम जब इसको कट करेंगे, दोनों ही सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, हम दोनों को कट करेंगे। अभी देखो बच्चों हम नहीं जानते कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहाँ है क्या है, लेकिन हम जब ECOR1 से दोनों को कट करते हैं तो ECOR1 ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा GAATTC को और राइट टू G को 5 to 3' डायरेक्शन में कट करेगा, चाहे वो फॉरेन डीएनए हो चाहे वो वेक्टर डीएनए हो। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ एरो मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ और यहाँ। तो इसको कट करने के बाद क्या होता है बच्चों, यू विल गेट द वेक्टर डीएनए like this। so vector DNA का और भी है, so from this side also DNA is there, ऐसे DNA है because it is circular, और इसका इस तरफ भी DNA हो सकता है। ओके देखो वेक्टर DNA ये सर्कुलर है बच्चों, देखो मैं फिर से कर रही हूँ इसको। वेक्टर DNA जो है वो क्या है, आपको सर्कुलर DNA है। ठीक है, तो हमने इसको एक एंड से दिखाया, यानी यहाँ से हमने कट किया। उसी तरह ये क्या करेगा, दूसरे तरफ से भी G का राइट मतलब यहाँ से कट करेगा।
तो दोनों तरफ से ये कट हुआ, तो ये पीस निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ हम क्या डालेंगे, यहाँ हम ये जो फॉरेन डीएनए भी कैसे था, अब देखो फॉरेन डीएनए कैसे था, फॉरेन डीएनए ऐसे था ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस था GAATTC, तो यहाँ पर G से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये ऐसे अभी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ, आई एम सॉरी गलत हो गया, दूसरे तरफ क्या होगा बच्चों, ऐसे मिला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से हमको जो जीन चाहिए, मान लो हमको ये पोर्शन चाहिए, ये हिस्सा चाहिए हमको, तो इसको भी कट करके हम ले जाएंगे और फॉरेन डीएनए, अब हमारा जो होस्ट डीएनए है यानी वेक्टर डीएनए है उसमें हम जोड़ेंगे। तो अभी देखो बच्चों, यू कैन सी दैट इसमें ऐसे दो एंड मिला है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो दो एंड निकला है, दे आर कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। देखो यहाँ ए है, टी है, तो यहाँ टी है, ए है, सो दे आर कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। सो हम एक रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम से कट करने का मतलब ये है कि वी विल गेट द कम्प्लीमेंटरी एंड्स सो दैट दे विल स्टिक टू ईच अदर। ये दोनों नहीं तो स्टिक नहीं करेंगे, कम्प्लीमेंटरिटी अगर नहीं होगा, हम इसको दूसरे एंजाइम से और इसको दूसरे एंजाइम से अगर कट करेंगे तो इसका दूसरा स्टिकी एंड आएगा, इसका दूसरा स्टिकी एंड आएगा, जो कि कम्प्लीमेंटरी नहीं होगा और दोनों जुड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं ताकि वो सेम साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करके उसका जो एंड है स्टिकी एंड रिलीज करेगा, विच विल बी कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। उसके बाद व्हेन लाइगेज एंजाइम इज एडेड, दे विल बी जॉइंड एंड दे विल फॉर्म द डीएनए लाइक दिस, ठीक है। और ये है फॉरेन डीएनए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द restriction enzyme works in the formation of recombinant DNA। ये देखो बच्चों किस तरह काम कर रहा है, ये देखो, सो यू कैन सी हियर, देखो कैसे लाइगेज एंजाइम जोड़ रहा है इसको। आपको फिर से मैं बैक ले रही हूँ, यू कैन सी द एनिमेशन, ठीक है। DNA ligase is the specific type of enzyme that facilitates the joining of DNA strands together by catalyzing the formation of a phosphodiester bond। तो देखो यहाँ पर आप बच्चों, ये देखो, आप एनिमेशन बस देखते जाओ। ये देखो हमने दो स्ट्रैंड, देखो पहले फिर से जा रही हूँ मैं बैक, फिर देखो बच्चों यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ कट किया था वहाँ पर लाइगेज एंजाइम जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो दो टर्मिनल आया फिर जुड़ रहा है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म एज वेल एज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर ऑल्सो फॉर्म। सो थोड़ा सा आप यहाँ रुको और रुक के आप ये एनिमेशन जो है किस तरह हो रहा है आप देखो इसको, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कैसे कट होता है, देन अगेन हाउ डू दे जॉइन, ओके। देन नेक्स्ट टूल बच्चों हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े थे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम पूरा विस्तार रूप से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से डीएनए को सेपरेट करेगा, एंड दीज डीएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो इसमें क्या किया जाता है, देखो बच्चों ये एक इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे, ये जो ट्रे है दिस इज इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे, और इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ चैम्बर्स है, दीज चैम्बर्स आर नोन एज वेल, इसको क्या कहा जाता है, वेल। और उस वेल में ऐसे टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें कि हम सैंपल को डालते हैं जिसमें डीएनए होता है, ठीक है। एंड ये ट्रे एक तरफ कैथोड के साथ कनेक्टेड है और एक तरफ एनोड के साथ कनेक्टेड है।
ठीक है। और आपका जो वेल है यानी सैंपल हम जिस तरफ प्लेस कर रहे हैं वो उस तरफ क्या है बच्चों, कैथोड है। रिमेंबर, अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम सैंपल लेंगे। ठीक है, मैं इसको फिर से मिटा रही हूँ। तो हमने सैंपल लिया, यहाँ पर सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद जब हम पावर सप्लाई करेंगे, यहाँ से पावर सप्लाई हुआ तो यहाँ कैथोड है और कैथोड में हमने क्या दिया, डीएनए सैंपल दिया। तो डीएनए आर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ POH माइनस ग्रुप एट द टर्मिनल पार्ट। सो ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो ये क्या करेगा, नाउ द डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ वो मूव करने लगेगा। एंड ये जो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, हाउ इट विल मूव, जो डीएनए स्ट्रैंड का साइज छोटा होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव करेगा और जिनका साइज बड़ा होता है वो कम डिस्टेंस तक मूव करेगा। एंड आफ्टर दैट यू विल गिव द विल सी द पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या यूज़ होता है। ओके, सो इसमें क्या क्या किया जाता है बच्चों, ये पूरा स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। डीएनए इज फ्रैगमेंटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला स्टेप है, डीएनए को हमने फ्रैगमेंट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो एनोड की तरफ हम मूव करने के लिए उनको फोर्स करेंगे, जब पावर सप्लाई करेंगे तो एनोड की तरफ मूव करेंगे तो डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, इसमें जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो, ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, दिस मैट्रिक्स इज एगारोज। हमने आपको बताया था ना, एक सीवीड होता है उसमें से अगर मिलता है। सो एगारोज इज obtained from bacteria, it is obtained from algae and it is a natural linear polymer of D-galactose and 3,6 anhydro L-galactose which is extracted from seaweeds। ठीक है, ये एक नेचुरल पॉलीमर है। और ये डीएनए फ्रैगमेंट कैसे सेपरेट होते हैं, द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट आउट according to their size through the sieving effect provided by the agarose gel। ये जो agarose gel का आपने देखा मैट्रिक्स, इसका सीविंग प्रॉपर्टी है। सीविंग मतलब छलनी करने का। ठीक है, सो जैसे आप चाय का छलनी होता है ना, उसी तरह इसमें माइक्रो पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू डीएनए मूव कर सकता है। सो डीएनए अभी क्या करेगा, दे आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द agarose जेल एंड द स्मॉलर साइज्ड फ्रैगमेंट विल मूव फार्दर, ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएंगे और जो छोटे बड़े फ्रैगमेंट है वो कम डिस्टेंस तक मूव करेंगे। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। देखो बच्चों, अभी जो डीएनए हमको मिला यहाँ पर, ये देखो, ये डीएनए जो हमने यहाँ पर डीएनए का फ्रैगमेंट हम सेपरेट हुआ, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। हम इसमें क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में हम एक स्टेन यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ दैट स्टेन, रिमेंबर दैट स्टेन इज एथिडियम ब्रोमाइड। ओके, दैट स्टेन इज एथिडियम ब्रोमाइड। अभी एथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद भी हम उसको देख नहीं सकते। हम जब एथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद उसको यूवी रेडिएशन डालेंगे उसमें, तो डीएनए हमको ऑरेंज बैंड के रूप से दिखाई देगा। ये ऑरेंज बैंड के रूप से दिखाई देगा एंड दैट इज़ द डीएनए एंड वी कैन आइसोलेट। अभी हमको पता चल गया डीएनए कहाँ है, डीएनए आर प्रेजेंट एज ऑरेंज बैंड की तरह है, प्रेजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट था इसको हम जेल के साथ कट करेंगे, जेल के साथ ऐसे पीस कट करके ले जाएंगे। ठीक है, जेल के साथ कट करके लेके उसको हम क्या करेंगे, फिर
वो जो जेल था उसको हम डिजोल्व कर देंगे सो दैट यू विल गेट प्यूरिफाइड डीएनए एंड दिस मेथड इज नोन एज एल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट and extracted from the gel pieces, and this step is called elution. Okay, so this is the whole method of electrophoresis, how after cutting the DNA the specific gene is multiplied. The specific gene will be multiplied, but before that it should be separated from the unnecessary fragments. जैसे आपको मैं बता रही हूँ, देखो ये डीएनए है. डीएनए का हमको इतना ही पार्ट चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड कर दिया तो ये कट हो गया. ये एक फ्रैगमेंट, ये फ्रैगमेंट, ये फ्रैगमेंट, हमको 3 तरह के फ्रैगमेंट मिले. ठीक है, सपोज से. तो हम इस फ्रैगमेंट से हमको सिर्फ यही चाहिए. तो इसके लिए हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है ताकि ये फ्रैगमेंट एक दूसरे से अलग हो जाए, ताकि हम इसी फ्रैगमेंट को सिलेक्ट करके ले सके. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, हमने आज इस सेशन में क्या पढ़ा. बायोटेक्नोलॉजी यूजेस मेनी टूल्स टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वन सच टूल दैट क्लीव्स डीएनए एट पर्टिकुलर साइट such as to allow creation of recombinant DNA molecule. Arbour and Lin discovered the restriction enzyme. Hind2 was the first enzyme to be discovered and isolated. Stanley Cohen and Herbert Boyer created fast recombinant DNA by using antibiotic resistant gene from Salmonella typhimurium and inserted in E. coli. इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बच्चों, स्टानले कोहेन का काम के बारे में. देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेम बाय फॉलोइंग ए कन्वेंशन. एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है. द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल डिराइव फ्रॉम जीनस नेम, नेक्स्ट टू लेटर इन स्मॉल लेटर फ्रॉम species name, and next letter for strain, and Roman number is to show the order of their discovery. Then हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is a technique for separating DNA fragments based on their size. Firstly, the sample DNA is cut into fragments by restriction endonuclease. The DNA fragments being negatively charged can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix that is made up of agarose gel. Commonly used matrix is agarose, which is a natural linear polymer of D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose, which is extracted from seaweeds. The DNA fragments separate out according to their size because of the sieving property of agarose gel. Hence, the smaller fragment size, the farther will they move. Okay, so बच्चों अभी कुछ देख लेते हैं कि आपने क्या ग्रास्प किया. कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. So these are all multiple type question. The first question, the DNA fragments produced by use of restriction endonuclease can be separated by polymerase chain reaction, density gradient centrifugation, gel electrophoresis, any of the above. Which of the given statement is correct in the context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis? DNA can be seen in visible light. DNA can be seen without staining in visible light. Ethidium bromide stained DNA can be seen in visible light. Ethidium bromide stained DNA can be seen under exposure to UV light. Third question, restriction enzyme refers to cleaving of phosphodiester bond in DNA by the enzyme, cutting of DNA at specific position only, prevention of the multiplication of bacteriophage in bacteria, all of the above. So your time starts now. अभी आप देख लो आपका आंसर क्या है. जल्दी जल्दी चूज कर लो बच्चों, उसके बाद हम अपना आंसर आपको देंगे. Okay, so next fourth question. The role of DNA ligase in the construction of a recombinant DNA molecule is formation of phosphodiester bond between two DNA fragments, formation of hydrogen bond between sticky end of DNA fragments, ligation of all purine and pyrimidine bases, none of the above. Fifth question, match the items in column 1 with those of in column 2.
सो कॉलम 1 में क्या क्या है? सीवेट, स्टेनिंग ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, इल्यूजन। और कॉलम 2 में क्या है बच्चों? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सोर्स ऑफ एगरोज, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल एंड एथिडियम ब्रोमाइड। थोड़ा सा लेटर इधर जो सीक्वेंस है इधर उधर करके हमने दिया है, लेकिन ये जो है अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर हो गया बच्चों। तो आप अभी अपना आंसर कर लो। अभी मैं जा रही हूँ हमारा आंसर देने के लिए। नाउ यू सी माई आंसर। ओके, अभी आपके आंसर के साथ आप अपन मेरा आंसर मैच करके देख लो, एंड यू कैन असेस योर सेल्फ हाउ मच यू हैव ग्रास्प्ड। आप अगर सही तरह से ग्रास्प नहीं किए तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए जहाँ समझ में नहीं आता, एंड स्टिल देन इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Okay, now you take some home assignment. Answer the following questions in brief. What are restriction enzymes? What role do they play in biotechnology? Explain the naming of restriction enzyme using given name ECOR 1. What is recognition site? Give its characteristics and significance. What is the principle involved in working of gel electrophoresis? How is DNA made visible after gel electrophoresis? Give appropriate answers. Question number 2. What would happen if the restriction enzyme do not cut the DNA at specific recognition sequence? A mixture of the fragment DNA was run on an agarose gel. The gel was stained with ethidium bromide, but no bend were observed. What would be the cause? Cause क्या हो सकता है? तो बच्चों, आप ये होम असाइनमेंट जरूर ले जाना एंड ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. All are very very important question. So thank you very much for watching this video. Keep watching, and our next biotechnology tools are cloning vector and making host competent. Still then, bye bye. Thank you for being. Keep watching.